یہ اس وقت کی بات ہے جب زیادہ تر دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ لالٹین یا تیل کے دیوں سے کام چلایا کرتے تھے۔ یہ کہانی ایسے ہی گاؤں کی ہے جو کہ کل ملا کے 18 سے 20 گھروں پر مشتمل ہوگا۔ گاؤں میں ایک مسجد اور مدرسہ تھا۔ گاؤں کے بیچ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ گرمی جتنی بھی ہو اس کنویں کا پانی ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ گاؤں کے مکان گو کے کچے تھے مگر لوگوں کے دلوں میں بہت محبت تھی۔ کسی کا کوئی بھی کام ہو کبھی کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا۔ ان کا ذریعہ معاش گاؤں سے کچھ دور زمینوں میں کھیتی باڑی تھا۔ ان لوگوں نے اس گاؤں کو بہت صاف ستھرا رکھا تھا۔ چاروں طرف ہریالی تھی اور اس گاؤں کو ہریالی نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ موسم یہاں پر زیادہ تر ابر آلود رہتا تھا اور گرمی بس 2-3 مہینے رہتی تھی۔ گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ لمبے لمبے پیڑ اور اس کے بیچ راہداری اس جنگل کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی تھی۔ گاؤں میں کچھ اونچی جگہ ہونے کی وجہ سے بارش کے موسم میں زیادہ پانی یہاں جمع نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہانی اس گاؤں میں رہنے والے ایک مولوی صاحب کی ہے۔ ان کی عمر کو زیادہ نہ تھی اور یہ ایک خوبصورت اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ شادی شدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں کی سبھی عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسی لیے گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ انہیں کچھ طب کی بھی معلومات تھیں۔ وہ اکثر گاؤں کے لوگوں کی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے ان کو جڑی بوٹی یا عرق دے دیا کرتے تھے۔ اس کی بدولت انہیں جو بھی وظیفہ یعنی پیسے ملتے وہ اسے اپنی گزر بسر کرتے۔ ان کا نام جمیل تھا۔ وہ ہر روز صبح تڑکے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جاتے۔ تقریباً پورا گاؤں ہی حاضر ہوتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ فجر سے پہلے مسجد جا کر دیے روشن کرتے، ضروری صفائی کر کے وضو کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ پھر فجر پڑھا کر مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے۔ شام کے اوقات میں وہ اکثر جنگل میں جا کر تلاوت کرتے۔ گاؤں کے لوگ اس بارے میں پوچھتے تو مولوی صاحب کہتے، اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت جگہ میں اس کے کلام کو تلاوت کرنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ ایک دن حسب معمول وہ اسی طرح جنگل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو انہیں کوئی آواز آئی۔ انہوں نے تو پہلے نہ دھیان دیا، پھر جب آواز مسلسل آنے لگی تو وہ اس آواز کی جانب بڑھے۔ وہاں دیکھا تو ایک خوبصورت ہرنی پاؤں میں زخم ہونے کی وجہ سے نڈھال پڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک پودے کے پاس جا کر کچھ پتیاں توڑیں، پھر زخمی ہرنی کے پاس پہنچے۔ بہت آرام اور پیار سے انہوں نے ہرنی کے زخم پر وہ پتیاں رکھ دیں۔ اسے تھوڑی دیر اپنے ہاتھوں میں دبائے رکھا۔ ہرنی کو جیسے آرام آ گیا، اس نے آواز نکالنا بند کر دی۔ مولوی صاحب نے پتیاں ہٹائیں تو ہرنی اچھلتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی وجہ سے ایک بے زبان کو آرام آ گیا۔ پھر یہ سوچا کہ اس جنگل میں پرندوں کے سوا تو کوئی دوسرا جانور نہیں، تو پھر یہ ہرنی کہاں سے آ گئی؟ پھر انہوں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی، ہو سکتا ہے پاس کے جنگل سے آ گئی ہو۔ اگلے دن وہ پھر سے تلاوت میں مشغول تھے تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ ہرنی ان کے پاس آ کے ان کے پاؤں کو چومنے لگی، پھر تشکر بھری نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگی۔ جب تک وہ جنگل میں رہے وہ ان کے پاس سے ہلی نہیں۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب گاؤں جانے کے لیے اٹھے وہ ہرنی بھی چلی گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مولوی صاحب جنگل جاتے تو وہ ہرنی ان کے پیروں سے لپٹ جاتی۔ مولوی صاحب بھی اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے جاتے۔ پھر ایک دن وہ ہرنی نہ آئی۔ مولوی صاحب نے اسے بہت ڈھونڈا۔ خیر مولوی صاحب پھر اپنی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں انہیں اپنے ارد گرد ایک عجیب خوشگوار مہک کا احساس ہوا اور کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ خیر انہوں نے تلاوت ختم کی اور واپس گاؤں آ گئے۔ زبیر جو اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک دن صبح صبح مولوی صاحب کے پاس گھبرایا ہوا آیا۔ مولوی صاحب میرے بچے کو بچا لیجیے۔ کیا ہوا ہے تمہارے بچے کو؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ خود ہی آ کر دیکھ لیں۔ مولوی صاحب نے کچھ ضروری دوائیں لیں اور زبیر کے ساتھ اس کے گھر جا پہنچے۔ اس کا 11 سالہ بچہ بے سوچ چارپائی پر پڑا تھا اور رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اچانک کیا ہوا؟ زبیر نے کہا جی مولوی صاحب، محلے میں بچے کھیل رہے تھے، یہ اچانک بھاگتا ہوا آیا اور دروازے پر ہی بے سود ہو گیا۔
मौलवी साहब ने उसे बगौर देखा तो पता चला किसी जहरीले कीड़े या बिच्छू ने काटा है। मौलवी साहब ने दुआ पढ़ी मगर कोई फर्क ना पड़ा। मौलवी साहब की पेशानी पर फिक्र की शिकनें नजर आने लगी। उन्होंने सबको बाहर जाने का कहा और कुरान पाक की तलावत की। रब के हजूर दुआ की कि ए मालिक, अब तू ही कोई मौजज़ा कर दे। अचानक मौलवी साहब को उसी खुशबू का एहसास हुआ जो उन्हें जंगल से महसूस हुई थी। फिर अचानक बच्चे ने आंख खोली और माँ को पुकारा। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए और परवरदिगार के यहाँ शुक्र अदा किया। फिर बाहर जाकर सबको खुशखबरी दी और कुछ जड़ी बूटियां भी थीं कि इस बच्चे को हर घंटे बाद पिला देना, अल्लाह शिफाए कामला अता करेगा। शाम को मौलवी साहब जंगल में तलावत में मशगूल थे तो उन्हें फिर उसी खुशबू का एहसास हुआ। उन्होंने नजरें उठाई तो उन्हें दूर एक साया नजर आया जो देखते ही देखते आसमान की तरफ चला गया। अगले रोज हस्बे मामूल मौलवी साहब फजर से पहले मस्जिद पहुंचे तो क्या देखते हैं, दिए पहले से रोशन है, सफाई भी पहले से की हुई है। वहां भी उन्हें उसी महक का एहसास हुआ तो वो हैरान हो गए। आसपास देखा कि शायद कोई आया हो मगर वहां तो कोई ना था। मदरसे में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाकर मौलवी साहब अपने घर पहुंचे तो वहां एक और मंजर ने उन्हें हैरत ज़दा कर दिया। लजीज पकवान की खुशबू से उनका घर महक रहा था। उन्होंने हांडी में देखा तो गर्मा गर्म सालन था और रोटियां भी उतनी ताज़ा जैसे किसी ने अभी अभी तैयार की हों। मौलवी साहब फौरन उठे, कुरान पाक की तलावत की और अमल शुरू कर दिया। फिर ऊंची आवाज में पूछा, यहाँ जो भी है अपने आप को जाहिर कर दे। इतने में उसी खुशबू ने उनकी सांसों को महका दिया और एक सफ़ेद साया नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में तब्दील हो गया। सफ़ेद लिबास में मलबूस, नीली आंखें, लंबे स्याह बाल, गुलाबी होंठ, गोया जन्नत की हूर हो। मौलवी साहब तो देखते ही रह गए। फिर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं एक जिन जाती हूँ मौलवी साहब, जब से आपको देखा है अपना दिल हार चुकी हूँ आप पे। जिस हिरनी को आपने बचाया था वो मैं ही थी। आपका हुस्न हमदर्दी और प्यार देखकर खुद पर मैं काबू ना रख सकी। आपकी इश्क में गिरफ्तार हो गई हूँ। आपको जानकर हैरत होगी कि मेरी उम्र 1200 साल है। मैं उस वक्त से आपके ख़ानदान को जानती हूँ जब हम कुछ जिनजातियाँ इस गांव में इंसानी रूप में आई थीं और एक बदकिरदार शख्स ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। तब वो आपके परदादा ही थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद मैंने उनकी बहुत खिदमत की और फिर नसर दल नसर मैं आपके ख़ानदान की खिदमत कर रही हूँ। आपको देखा तो खुद पर काबू ना रख सकी और आपके इश्क की जंजीर में बंध गई। मगर ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक इंसान हूँ और तुम जिन जाती, फिर मुझसे कैसे इश्क कर सकती हो? क्यों नहीं मौलवी साहब, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक के दिल में आपके परवरदिगार ने इश्क का जज्बा रखा है। मैंने सिर्फ आपसे इश्क नहीं किया, आपसे शादी की भी ख्वाहिशमंद हूँ। आप फिक्र न करें, आपके सिवा मैं कभी किसी को नजर नहीं आऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए फैसले के लिए, किसी भी काम में जल्दबाजी सही नहीं, और वो भी तब जब मामला जिनजाती का हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे नीलम बुला सकते हैं मौलवी साहब। जिनजाती ने तशक्कुर आमेज नजरों से मौलवी साहब को देखा और गायब हो गई। उस शाम फिर मौलवी साहब जंगल ना गए। उस रात बहुत तेज बारिश हुई और हवा भी बहुत तेज थी। मौलवी साहब लालटेन की मध्यम रोशनी में दोपहर को हुए वाक़े के बारे में सोच रहे थे। क्या मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए? उन्होंने इस बारे में हर पहलू से गौर किया। उसकी मोहब्बत पाकीज़ा है, उसमें कोई गर्ज शामिल नहीं। मौलवी साहब ने सोचा, पर यह कैसे मुमकिन है? उसकी और मेरी शादी का अंजाम क्या होगा? इसके आगे वो फिर कुछ सोच ना सके। कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी, फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने हमेशा मेरी मदद की, इस मुश्किल फैसले की घड़ी में मेरी मदद कर। ये दुआ उन्होंने की तो एक पुरसकून नींद आ गई। अगले रोज मौलवी साहब नमाज के लिए उठे तो बारिश थम गई थी, आसमान साफ था। मौलवी साहब मस्जिद पहुंचे तो हस्बे मामूल दिए जल रहे थे, सफाई भी हुई थी। उन्होंने तलावत शुरू ही की थी कि नीलम उनसे कुछ फासले पर आकर बैठ गई और तलावत सुनने लगी। नमाज के वक्त जैसे ही नमाजी मस्जिद में दाखिल हुए वो गायब हो गई। मदरसे से फारिग होकर जब मौलवी साहब घर पहुंचे तो देखा बारिश की वजह से उनके घर की दीवार टूट गई है। अहम मुमकिन है कि बारिश दोबारा हो तो उनका घर पानी में बह जाए। खैर वो ये सोच रहे थे कि उसकी मुरम्मत कैसे करवाई जाए। नीलम इतने में उनके सामने आ गई,
सलाम के बाद पूछा कि मौलवी साहब आपने क्या सोचा है। मौलवी साहब उसकी तरफ देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराए और कहने लगे कि मैंने फैसला किया है, तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाऊंगा। उसका चेहरा खुशी और शर्म से लाल हो गया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर उसने मौलवी साहब को देखा, वो कुछ परेशान लग रहे थे। जमील साहब, क्या बात है? आपके खूबसूरत चेहरे पर यह परेशानी ज़ेब नहीं देती। असल में मैं घर की मुरम्मत के बारे में सोच रहा था कि कैसे होगी। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं मौलवी साहब, आपकी सब परेशानी मेरी परेशानी है। फिर नीलम ने टूटी दीवार की तरफ देखा और वो ऐसी हो गई जैसे कभी टूटी ही न थी। मौलवी साहब तो हैरान हो गए। अगले रोज मौलवी साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो एक खुशगवार हैरत से उनका सामना हुआ। मस्जिद की दीवारों पर सफेदी हुई थी, नई चिटाइयां, दियों की जगह लालटेन आ गई थी। वो समझ गए कि हो ना हो ये नीलम का ही काम है। नमाजियों ने भी इस तब्दीली को महसूस किया। एक नमाजी ने पूछा भी कि मौलवी साहब ये कैसे हुआ। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सब अल्लाह के काम है, कैसे हो जाते हैं हम इंसानों को पता नहीं चलता। उस दिन के बाद सब मालूमात से फारिग होकर जब मौलवी साहब घर लौटे तो रात का खाना उनका मुंतजिर था। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और चारपाई पर बैठे ही थे कि नीलम आ गई। ये मेरे सोने का वक्त है, तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौलवी साहब। जिनजादी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? क्यों तुम्हारे चेहरे पर गुलाब खिल रहे हैं? ये सुनकर नीलम ने शर्म से आंखें झुकाईं। मौलवी साहब, आज हमारा निकाह है। ये सुनकर तो वो हैरान हो गए। बोले, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो कोई इंतजाम भी नहीं किया। आप इन बातों की फिक्र ना करें, सब इंतजाम पहले ही हो चुका है, आप बस मेरे हाथों को थाम लें। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मौलवी साहब ने डरते डरते उसके हाथ थाम लिए। उसके हाथों का लम्स बहुत कोमल था। उसके बाद नीलम ने मौलवी साहब की आंखों में देखा। चारों तरफ एक सफ़ेद रोशनी फैल गई। कुछ देर के बाद मौलवी साहब ने देखा वो एक दिलकश और खूबसूरत वादी में है, जहाँ चारों तरफ अलग अलग फूलों की खुशबू फैली हुई थी। हवा के झोंके उनकी रूह में ठंडक का एहसास पैदा कर रहे थे। बहुत इकसाम के फल पेड़ से लटक रहे थे। बादल जैसे उन्हें झुक झुक कर सलामी पेश कर रहे थे। पेड़ों पे बैठे परिंदे उन्हें खुशामदीद कह रहे थे। ये सब कुछ उन्हें ख्वाब जैसा लग रहा था। उसके बाद नीलम ने फिर मौलवी साहब की आंखों में देखा तो उनका लिबास तब्दील हो गया। अब वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे थे। छोटे बच्चे नीलम और मौलवी साहब के गिर्द घूमकर गाना गाते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। ये सब उनके लिए बहुत दिलकश था। कुछ देर में वहाँ एक मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब ने उनकी रजामंदी पूछी। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। फिर अचानक तेज रोशनी फैली और नीलम और मौलवी साहब वापस अपने घर में थे। मौलवी साहब ये देखकर हैरान रह गए कि उनका पूरा घर फूलों से सजा हुआ है। ऐसे फूल उन्होंने इस दुनिया में कभी नहीं देखे थे। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। सेज पर भी अजीब सी रोशनी थी। दोनों सेज पर बैठे थे और राजो न्याज की बातों में मशगूल हो गए। अगली सुबह मौलवी साहब ने मदरसे की छुट्टी दे रखी थी। वो और नीलम जंगल में उसी जगह गए जहां पहली बार मिले थे। मौसम काफी खुशगवार था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों इस मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। नीलम ने पूछा, आपको मेरी दुनिया कैसी लगी मौलवी साहब? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना नीलम? नहीं मेरे सरताज, मैं तो हमेशा हमेशा आपके साथ रहूंगी। हाँ, मगर जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं अपनी दुनिया में ज़रूर जाऊंगी। इस तरह मोहब्बत की बातें करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया और वो दोनों वापस अपने घर पहुंच गए। शाम तक मौसम अबर आलूद हो चुका था और इम्कान था कि रात को बहुत तेज़ बारिश होगी, और वैसा ही हुआ। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई। मौलवी साहब ने पहली बार अपने गांव में इस कदर बारिश देखी थी। सुबह नमाज के बाद मस्जिद से निकलते हुए 4 से 5 लोगों ने मौलवी साहब को कहा कि कल रात बारिश से उनके घर का बहुत नुकसान हुआ। मौलवी साहब उनके घरों में गए तो वाकई बहुत नुकसान था। किसी के घर की छत टूट गई थी, किसी की दीवार। मौलवी साहब को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने हौसला दिया कि सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। वो काफ़ी परेशानी की हालत में घर पहुंचे, सरसरी सा नाश्ता किया। इस बात को नीलम ने महसूस किया और पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मौलवी साहब ने नीलम को बारिश की वजह से टूटने वाले मकानों के बारे में बताया।
नीलम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप दूसरों को तकलीफ और दुख में नहीं देख सकते। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता नीलम। आपकी यही अदा तो मौलवी साहब मुझे बहुत पसंद है। आप फिक्र ना करें, सब गांव वालों को बुलाइए और उनसे कहें कि गांव में जितने घर हैं सबकी मुरम्मत हो जाएगी और आइंदा किसी को भी बारिश की वजह से नुकसान नहीं होगा। पर यह सब कैसे होगा नीलम? बस आप उन्हें जाकर कह दीजिए ना। जैसा नीलम ने कहा था वैसा ही मौलवी साहब ने गांव वालों को बता दिया। पर मौलवी साहब, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम अपने टूटे फूटे घरों और दीवारों की मुरम्मत करवा सकें। गांव वालों में से एक बोला, आप लोग इस बात की फिक्र ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो सब बेहतर करेगा। मौलवी साहब ने जवाब दिया। गांव वाले गैर यकीनी किसी कैफियत में वापस चले गए। मौलवी साहब घर आए और तलावत में मशगूल हो गए। तलावत ख़त्म की तो नीलम से कहा कि मैंने तो सबसे कह दिया है, मगर मैं नहीं जानता कि ये काम कैसे होगा। बस आप देखना, अल्लाह के हुक्म से सब मुश्किलात आसान हो जाएंगी। अगले रोज मौलवी साहब ने देखा कि गांव के तमाम घरों की छतें मुरम्मत हो चुकी थीं। उन्हें हैरत के साथ डर भी था कि अगर गांव वालों ने पूछ लिया कि घर मुरम्मत कैसे हुई तो वो क्या जवाब देंगे। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए घर पहुंचे। नीलम ने कहा, देखा ना, अल्लाह के हुक्म से गांव की मुश्किल आसान हो गई ना। पर मुझे फिक्र है, अगर उन्होंने ये सब पूछ लिया कि ये कैसे हुआ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मौलवी साहब, आप फिक्र ना करें, ये मुरम्मत मैंने अपनी दुनिया से जिनजादे बुलवा कर करवाई है और गांव में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये याद हो कि उनके घर कभी टूटे थे और फिर मुरम्मत हुए। मौलवी साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नीलम से कहा कि तुम ना होती तो गांव वालों की मुश्किलात इतनी जल्दी हल कैसे होती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। मौलवी साहब को अल्लाह ने इस दौरान एक बेटे और एक बेटी की खुशी दिखाई। बेटे का नाम अयाज और बेटी का नाम सोबिया रखा गया। मौलवी साहब और नीलम के बच्चे काफ़ी प्यारे थे। जब भी मौलवी साहब और नीलम बच्चों को लेकर निकलते तो वो उन्हें अपने अजल में छुपा लेती, जिससे वो लोगों की नज़र से ओझल हो जाते। गांव में अक्सर लोग मौलवी साहब को शादी का मशवरा देते, मगर वो मुस्कुराकर उनकी बातों को टाल देते। कहते, अल्लाह ने इस गांव में मुझे बहुत खुशी दिखाई है। एक दिन उनकी बेटी सोबिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मौलवी साहब ने जड़ी बूटी पिलाई, मगर उसमें कोई अफाका ना हुआ। ये देखकर नीलम ने कहा कि सरताज, इसका इलाज मेरी दुनिया में है, यानी जिन्नात की दुनिया में। आप इजाज़त दें तो मैं इसे ले जाऊं। मौलवी साहब का दिल उदास हो गया, क्योंकि वो नीलम और बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर बेटी की तबीयत के आगे मजबूर होकर मुझे दिल के साथ नीलम को इजाज़त दे दी। नीलम ने घर की दीवार की तरफ देखा और फिर एक रोशनी सी फैल गई। उससे एक रास्ता नमूदार हुआ, जिससे माँ बेटी चली गईं और फिर से दीवार अपनी शक्ल में आ गई। उनके जाने के बाद मौलवी साहब को उदास देखकर अयाज उनके पास आई और कहा कि अब्बा जान, फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। 2 दिन गुजर गए मगर नीलम की कोई खबर ना थी। मौलवी साहब को फिक्रमंद देखकर अयाज बोला, अब्बा जान, अम्मी और सोबिया खैरियत से हैं, आप फिक्र ना करें, वो लोग जल्द हमारे पास आ जाएंगे। ये कहकर उसने दीवार की तरफ देखा। एक तेज रोशनी पैदा हो गई, जिसके बाद उस रोशनी में मौलवी साहब को नीलम और सोबिया नजर आई। सोबिया गहरी नींद में सो रही थी और नीलम उसके सरहाने बैठी थी। ये देखकर मौलवी साहब को काफी सुकून मिला। साथ ही साथ हैरत भी हुई कि उनका बेटा भी नीलम की तरह जिनसाता है, या शायद उसमें भी जिनजातों जैसी खसलतें पाई जाती हैं। मौलवी साहब को हैरत में देखकर अयाज बोला, अब्बा जान, जैसी अम्मी जिनजाती हैं बिल्कुल वैसे ही मैं भी एक जिनजात हूँ। हमें इस दुनिया में आपकी औलाद के रूप में भेजा गया है, हम इस फर्ज को बखूबी निभाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अयाज का हाथ थाम लिया। अगले रोज दोपहर के बाद सब गांव वाले परेशान हाल मौलवी साहब के पास आए और कहने लगे कि उनकी जमीनों में अजीब से कीड़े हो गए हैं जो फसलों को तबाह कर रहे हैं। मौलवी साहब तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि आप सब अल्लाह से दुआ करें, वो आपकी मुश्किलात को आसान कर देगा। मौलवी साहब घर लौटे तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर उनका बेटा अयाज बोला, क्या बात है अब्बा जान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मौलवी साहब ने उसे कोई जवाब न दिया और कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ हो गए। रो रो कर अल्लाह की हजूर दुआ की, ए मालिक, हम बहुत गुनहगार बंदे हैं, तू ही इन गांव वालों की मुश्किलात में इनका मददगार है। या रब, तू इनकी मुश्किलों को आसान कर दे। ये सुनकर अयाज उनके पास आया और कहा, अब्बा जाना, फिक्र ना करें,
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ دیر آنکھیں بند کیں، کچھ پڑھتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ ابا جان، آپ گاؤں کے کنویں میں سے ایک کٹورا پانی لائیے۔ مولوی صاحب نے ویسا ہی کیا۔ ایاز نے کچھ دعا پڑھی اور پانی پر دم کر دیا۔ کہا کہ آپ اسے دوبارہ کنویں میں ڈال دیں اور گاؤں والوں سے کہیں کہ اس کنویں سے پانی لے کر اپنی زمینوں پر چھڑکیں اور مغرب سے پہلے پہلے لوٹ آئیں۔ اللہ نے چاہا تو ان کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے سب کو ہدایت کی، جیسے ایاز نے کہا تھا ویسا ہی کیا گیا۔ سب نے کنویں سے پانی لے کر اپنی اپنی زمینوں پر اس کا چھڑکاؤ کیا اور تیزی سے گھر واپس آ گئے۔ سب پریشان تھے کہ اللہ جانے اب کیا ہوگا۔ مولوی صاحب نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح سب گاؤں والے اپنی زمینوں پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کیڑوں کا تو نام و نشان ہی نہیں اور فصلیں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہیں۔ سب لوگ گاؤں واپس آئے، مولوی صاحب کو حالات بتائے، پھر سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نوافل عطا کیے۔ رات ہوئی، مولوی صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں کی مشکلات کے بارے میں سوچ کر جہاں مطمئن تھے اتنا ہی نیلم اور صوبیہ کے لیے افسردہ تھے۔ سوچ رہے تھے کہ کب ان کی گھر کی رونق واپس آئے گی۔ اچانک ہی ایک تیز روشنی پھیل گئی اور صوبیہ بھاگتی ہوئی مولوی صاحب کے گلے لگ گئی۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ایاز نے ان کی غیر موجودگی میں تمام حالات جو پیش آئے تھے ان سے نیلم کو آگاہ کیا۔ نیلم نے اس کا منہ چوم لیا۔ دن گزرتے گئے، مولوی صاحب کے بالوں میں چاندنی آنے لگی، بچے جوان ہو چکے تھے۔ صوبیہ اور ایاز دونوں خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئے تھے، خاص کر صوبیہ تو ہو بہو نیلم لگتی تھی۔ اب مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی، جس کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ ایک دن اچانک شام کو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ نیلم اور بچے ان کے سرہانے تھے۔ مولوی صاحب نے اپنی جنزادی بیگم نیلم سے کہا کہ شاید میرا اس دنیا میں وقت پورا ہو چکا ہے، میرے بعد چاہے تم جہاں بھی رہو لیکن اس گاؤں والوں سے بے خبر نہ رہنا۔ نہیں سرتاج، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں نیلم، انسان کو مرنے سے پہلے کچھ اس کی موت کے بارے میں اشارہ مل ہی جاتا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اگلی صبح ان کی تدفین ہوئی، جس میں ان کے بیٹے ایاز نے بھی نادیدہ طور پر بیٹے کے فرائض نبھائے۔ پھر نیلم اپنے بچوں ایاز اور صوبیہ کے ساتھ جنات کی دنیا میں واپس چلی گئی، لیکن وہ پھر بھی گاؤں والوں سے بے خبر نہ رہی۔ جب اس گاؤں پر یا گاؤں والوں پر کوئی مصیبت آتی، جنزادی نیلم اور اس کے بچے ایاز اور صوبیہ نادیدہ طور پر ان کی تمام مشکلات کو حل کر دیتے۔